Hi, hello everyone. Welcome back to the lecture 3. In the last two lectures, we have learned how to install Python and set up the virtual environment. And we have seen the two IDEs, Visual Studio Code and Anaconda. I hope guys this installation step 7 clear to everyone. अगर किसी को भी कुछ इशू आ रहा है लाइक वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकता है और कमेंट्स में भी पूछ सकता है. I will certainly answer it. And then, and today is very important lecture. Today we will see some of the very basic fundamental blocks of the Python, concepts of Python, like variables, objects, all these kind of concepts. And we will run our first program. Obviously, guys, we have run the first program, like print statement, and we will run, or the we will code our first program today. Let's see, guys. So first of all, guys, I will open my Visual Studio Code. I will open my Visual Studio Code. Just a second. Then right click, show more options, option with code. Clear, guys? Just a second. Yes. Yes, today is the lecture 3, and we will discuss variables like concepts. है ना? And I will select my kernel. As you know, guys, I have created this environment with Unisol underscore Python in the last lecture. So I will use this 3.11 version. Clear, guys? And then you have to click on code, and the one cell of the your notebook will be run. Guys, similar kind of things you can run on the Anaconda. You can run on the Anaconda. You have to open it, and then you have to like click on the Jupyter notebook. Similar kind of things you can run on Jupyter notebooks. I will throughout this course I will do this on the VS Code, this feature of the notebook. Clear, guys? Clear, guys? Okay. Now let's see. Now let's see, guys. Just a second. Now let's see, guys. Guys, आपका जो एक मेजर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स. आज की हम क्लास का जो मेन एजेंडा क्या रहने वाला है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे डाटा टाइप्स ना, और उसके बाद समझेंगे some sort of important concept, aliasing and mutable and immutable. These are the today's class agenda, guys. ये पहले तीन टॉपिक तो एकदम बेसिक हैं जो कि पाइथन में हर पॉइंट पे काम आएंगे आपके, है ना. और ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द जनरली इंटरव्यूज में पूछेंगे, अलाइसिंग क्या होती है, इनफैक्ट थ्योरी टेस्ट में भी जो इनफैक्ट पूछ सकते हैं आपसे, प्रोबेबिलिटी रहती है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है, अलाइसिंग में डिफरेंस क्या होता है, अलाइसिंग क्या होती है, और इन केस ऑफ म्यूटेबल तो हम समझेंगे ये चीज क्या होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरिएबल्स. Guys, let's say वेरिएबल्स को हम एक एनालॉजी से समझते हैं. पहले हम रियल टाइम पे किसी से ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन करते हैं तो हम हर चीज को एक नाम देते हैं. वी गिव नेम टू एवरीथिंग. लाइक कन्वर्सेशंस के दौरान, लाइक लेट्स से मैंने राहुल से बात करी थी, मैं, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर. We give a name to everything while conversations, and using these names or referencing, we do our conversation. In a similar task, guys, अगर मुझे मशीन को बताना है, अगर लेट्स से मुझे मशीन को बताना है गाइस, है ना, अगर मुझे मशीन को वो कुछ बताना है लाइक दिस इज अ टेबल, दिस इज चेयर, अगर मुझे ये चीज बतानी है तो मैं सम छोटो उसे नाम दूंगा मशीन के लिए. हाँ, तुम इसे कुछ ये चीज बुलाओगे. लेट्स से मुझे मशीन को जो इंस्ट्रक्ट करना है, लाइक तुम 5+3 करो,
like तुम 5 + 3 करो, we will see it. Then you will click on 5 + 3 and then click run cell or shift plus enter. Then press enter. Yes, print 5 + 3. Clear guys? अगर मुझे मशीन को लेट्स से गाइस, अगर मुझे ये वाला वेरिएबल कुछ किसी ब्लॉक में मुझे स्टोर करना है ना, मान लो गैस ये वाला वेरिएबल ये मुझे 5 नंबर काफी टाइम्स मुझे इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, अपनी इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि हम रियल टाइम कन्वर्सेशंस में भी तो जैसे कि मान लो कोई पर्सन है कंपनी में प्रेसिडेंट और उसका नाम है राहुल, हम उसे कैसे रेफरेंस करेंगे? उसके नाम से रेफरेंस करेंगे। अब ये तो हम कहेंगे नहीं वो जो ऊंची पोस्ट वाला पर्सन है वो सबसे हाईएस्ट मुझे उससे बात करनी है, हम तो सीधा उसके नाम से उसके वेरिएबल से डिफाइन करेंगे मुझे प्रेसिडेंट से मीटिंग करनी है। तो इसी तरह से वेरिएबल्स क्या रहते हैं गाइस, है ना, हम मशीन को बताते हैं, है ना, कौन सी चीज को कौन सा नाम देना है ना, कौन सी चीज को कौन सा नाम देना है, सॉरी गाइस। सॉरी गाइस, कौन सी चीज को कौन सा नाम देना है। लाइक लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक टाइप आइडेंटिफाइड वी विल सी इट, है ना, एवरी वेरिएबल। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम आइडेंटिफायर देख लेते हैं क्या होता है ना। आइडेंटिफायर इज द नेम दैट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, रहने देना ऑब्जेक्ट मैं बाद में अभी समझाता हूँ गाइस, रहने दो, है ना। इट इज जस्ट ए नेम दैट यू गिव इन पाइथन, है ना। ऑब्वियसली गैस ये चीज तो सभी को समझ आ गई होगी। लाइक मुझे 5 को कुछ नाम देना है, मैं ए इज इक्वल टू 5 दे दूंगा। मान लो जी दिस इज द वेरिएबल और आइडेंटिफाइड दैट आई असाइंड एंड जो इसकी वैल्यू क्या है 5। क्लियर गैस? और बी इज इक्वल टू मुझे मान लो कुछ मुझे नाम देना है दिशांत, ये स्टोर करवाना है। और देन आई विल कॉल बी, मुझे इससे फिर इसके बाद गैस मुझे मल्टीपल टाइम्स दिशांत दिशांत नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिंपली बी से वेरिएबल को उसके जो अंदर की वैल्यू है उसको उससे कम कर लूंगा। क्लियर गैस? क्लियर गैस? now let's see we will assign the some sort of variables. Variables are always assigned, like let's say a is equal to a, or then I will print it. Yes, let's say it's very easy. Guys, in the Python, I forget to tell you one thing. There are the special features like comments. What are the comments, guys? Like generally हम अपने रफ नोटबुक में भी हम जब अपने नोट्स भी बनाते हैं, हम जब अपने नोटबुक में नोट्स भी बनाते हैं, नोटबुक में नोट्स भी बनाते हैं, तो हम सम सॉर्ट ऑफ साइड पे एक लाइन खींचते हैं, तो उसमें हम सम सॉर्ट ऑफ रफ वर्क करते हैं, है ना। और इधर सम सॉर्ट ऑफ हम जो हमें क्लास में करवाया जाता है ये चीज, ताकि टीचर जो है जो हमारा चेक करे वो क्लियर कट अंडरस्टैंड कर सके ये रफ वर्क है, इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, ये आपका ये मेन टास्क है, ये चीज है ना। बट वो आप रफ वर्क करते क्यों है? क्योंकि ये सम सॉर्ट ऑफ मान लो आप मैथ्स की नोटबुक है, मैथ्स में आप कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हो लेट्स से, है ना, है ना, उस चीज के लिए नहीं नहीं सिमिलर पर्पस के लिए गाइस पाइथन में आपको एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड की जाती है कमेंट्स। लाइक आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को चाहते हो कि ये मशीन रीड ना करे, यू वांट फ्रॉम मशीन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रीड, है ना, वो इंस्ट्रक्शंस वो पढ़े ना, एज इट इज रहे, है ना, आपकी कन्वीनियंस के लिए। लाइक आपको कहीं पे मार्क करना है ना, लेट्स से आपने कुछ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ये आपका जो पहला सेट था इंस्ट्रक्शन का, है ना, ये आपका सेकंड सेट था इंस्ट्रक्शन का, है ना, और इसमें आपने सम छोटो वेरिएबल्स को हम इसमें
हैशटैग से डिनोट करते हैं पाइथन में। और हैशटैग लाइक आपने ये नाम लिख दिया कि ये इंस्ट्रक्शन है कुछ, मान लो कैलकुलेटर के लिए, लाइक इस तरह से कुछ कैलकुलेशंस करनी है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है कुछ प्रिंट वगैरह के लिए, लाइक ये कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिंट करवानी है ना। तो इस मतलब आपको फिर क्लैरिटी आई, ताकि आप बाद में वो कोड को, बाद में वो स्ट्रक्चर्स को जब देख पाओ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। क्लियर? दिस इज वेरिएबल दैट आई हैव क्रिएटेड, है ना। और ऑल्सो यस, और मैंने वेरिएबल को, वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर करी है 5, और वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करा? इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, है ना। और यही चीज होती है गाइस, हम ये चीज समझेंगे बाद में, अभी समझते हैं। आपका जो एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा इन डेप्थ जाऊं, आपका जो कंप्यूटर में गाइस मेमोरी होती है ना, जो आपकी रैम होती है, दिस इज योर रैम, जो आपके कंप्यूटर में रैम रहती है, और ये आपकी स्मॉल स्मॉल बिट्स में डिवाइड होती है। लेट्स से अगर किसी कंप्यूटर की 8 GB रैम है ना गैस, जो आपका एक इंटीजर होता है ना, मान लो आपने ये एक वेरिएबल क्रिएट करा ए, और इसमें आपने वैल्यू पुट करी 5। क्लियर गैस? इसमें आपने क्या पुट करी? वैल्यू 5, है ना। और ये वैल्यू जो होता है ना, एक वैल्यू, ये आई डोंट रिमेम्बर एक्जेक्टली दिस, आई थिंक 4 बाइट्स लेता है या 4 बिट्स लेता है, जस्ट चेक। डाटा टाइप्स इन पाइथन, स्टोर डाटा, लाइक जस्ट अ सेकंड। As you can see this, there are a lot of variables that you can see here. Let's say ये समझो 4 बाइट्स लेता है ना, 4 बाइट्स। क्लियर गैस? और सिमिलरली 4 बिट्स, है ना। और जो आपका एक इंटीजर वेरिएबल है, लेट्स से आपका 4 बिट्स लेता है ना। और आपकी जो रैम है 8 GB रैम है, और ये स्मॉल स्मॉल बिट्स में डिवाइड होगी। मान लो ये 8 GB रैम है, 8 GB रैम में कितने बिट्स होंगे बताओ मुझे? 8 GB रैम में 1 GB में 1024 MB होंगे, और 1024 MB, और 1 MB में 1024 KBs होंगे, और 1 KB में, किलो बाइट्स में 1024 बाइट्स होंगे मे बी, और एक बाइट में आई थिंक 8 बिट्स होते हैं। एम आई करेक्ट? तो इसे कैलकुलेट करो। जस्ट अ सेकेंड। दिस इज योर आंसर गैस। जस्ट 1,00,000 lakh crore एंड 6,871 crore। कुछ समझोटो मान लो अप्रोक्सीमेटली 60, जितना करोड़ है, इतने बिट्स। जस्ट कंसिडर हाउ मच वेरिएबल्स ऑफ द इंटीजर टाइप। वेरिएबल क्या है? इंटीजर है, इसकी टाइप क्या है? इंटीजर है गाइस। क्लियर गाइस? और ये इतने काइंड ऑफ वेरिएबल्स आप खुद नोट डाउन करो, 6900/4 से डिवाइड कर लो, इतने वेरिएबल्स इसमें स्टोर कर सकते हैं आप। क्लियर गाइस? और आप इसकी गाइस टाइप भी जान सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट से। टाइप एक फंक्शन होता है, अब ये चीज समझोगे गैस। देखो क्लास इंट, बट इज दिस टाइप, बट इज दिस टाइप, टाइप इज लाइक, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में एक आपको शेफ वाली एनालॉजी दी थी, शेफ वाली गाइस एनालॉजी दी थी आपको। और इस शेफ में क्या था गाइस? आपका जो शेफ था किचन में काफी ज्यादा फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल कर रहा था,
काफी ज्यादा लाइक आपको उस शेफ को लाइक रेसिपी बुक चाहिए थी, है ना, इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, है ना, इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, और किचन में लाइक वेरियस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए थे बनाने के लिए खाना, है ना, ये चीज चाहिए थी। Yes, ये चीज चाहिए थी guys। बट फिर वो अगर मैं इन डेप्थ फिर से सोचूंगा guys, और इंग्रेडिएंट्स वो कहाँ से परचेज करता, लाइक गैस लेट्स से उसे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए लाइक गोभी, है ना, कुछ सब्जी वगैरह भी चाहिए, गोभी सब्जी है, कुछ स्पाइसेस वगैरह चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लाइक वो वेजिटेबल तो वेजिटेबल शॉप से खरीदेगा, वेजिटेबल शॉप होगी उसके लिए, वो मार्केट जाएगा, वेजिटेबल शॉप से वेजिटेबल्स खरीदेगा, और फिर वो ग्रोसरी स्टोर से अपना रिमेनिंग जो कुछ स्पाइसेस वगैरह खरीदेगा, है ना, ये चीज है। दीज आर काइंड ऑफ गाइस, आप समझ सकते हैं ये फंक्शंस हैं, ये वेजिटेबल शॉप का ये फंक्शन है, ये काम है उसका वेजिटेबल्स को बेचना, शेफ को इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करना। ग्रोसरी शॉप का काम है गाइस, वो उसे शेफ को इंग्रेडिएंट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना, है ना। और सिमिलरली गाइस पाइथन में कुछ ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। पाइथन हैज पाइथन हैज इनबिल्ट फंक्शंस, Python has guys inbuilt functions which we can use according to our like functionality, which we can use according to our functionality, जिससे हमें ऐसा काम चाहिए होगा। इतनी गाइस क्लियर हुई गाइस? चलो, तो अब टाइप अब बीएस कोड। अब देखो गाइस, जब मैं टाइप टाइप करता हूं, तो जब मैंने टाइप करा तो मुझे ऑटोमेटिकली इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इस फंक्शन का काम क्या है, वो मुझे दिखने लगा। ये टाइप के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अभी समझाऊंगा क्या होता है, डोंट वरी गाइस। टाइप में एक इनपुट मांग रहा है, टाइप में एक इनपुट मांग रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स टाइप नेम, है ना, ए। और मैंने मान लो गाइस ए की, ए जो वेरिएबल की टाइप जाननी है, तो ए जाना, और दिस इज अ गाइस इंट, इंट मींस इंटीजर टाइप। क्लियर? अब मैं मेन चीज पे आऊंगा, जो मैंने जो मेजर जो वादा किया था आपसे, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। बस मैं इतना इसमें इन डेप्थ नहीं अभी जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये थोड़े से गैस एडवांस कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। Yes, everything in the Python is an object. First of all, everything in Python is an object, है ना। आप चाहे कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हो पाइथन में, कुछ मान लो किसी भी टाइप का वेरिएबल डिफाइन करते हो, या कुछ आप कुछ मान लो वेरिएबल डिफाइन करते हो, एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, और उसमें लाइक 5 है, और एनी काइंड ऑफ लाइक, है ना, 5.14, है ना। आपने मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने लेट्स से एक वेरिएबल डिफाइन करा एस 54, और एक वेरिएबल डिफाइन करा डी, जिसमें आपने स्टोर करा 4.3, है ना। ये कौन सी वैल्यू है गैस, इसमें आपने इस वेरिएबल में क्या दी, इंटीजर, इस वेरिएबल में आपने सम सॉर्ट डेसिमल वैल्यू दी, और इसे पाइथन की लैंग्वेज में हम बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोट वैल्यू, डेसिमल। और एक वेरिएबल मैंने डिफाइन करा है, और जिसमें मैंने सम सॉर्ट ऑफ कुछ, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी, आई एम, आई लाइक पिज्जा। गैस इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। यू विल अंडरस्टैंड लेटर, डोंट वरी गाइस। मैं ये कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहा हूं, यस क्लियर गाइस। मैंने क्या करा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 3 वेरिएबल बनाए, एस डी एफ, 3 वेरिएबल्स बनाए, और एक में मैंने वैल्यू स्टोर करी 4, एक में मैंने वैल्यू 4.50, एक में मैंने कुछ सेंटेंस स्टोर करा,
क्लियर गैस? मैंने ये तीन वेरिएबल्स बनाए, है ना? और देन आई हैव रन इट, और देन यू विल चेक प्रिंट टाइप ऑफ एस, प्रिंट टाइप ऑफ टी, प्रिंट टाइप ऑफ एफ, देन आई हैव क्लिक। यू विल सी गाइस, जो एस की टाइप है इसमें आ रहा है क्लास इंट। जो एस की टाइप है, एस मेरा क्या था, मैंने अभी क्या कहा, हर चीज ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली गाइस हमारे लिए हर चीज ऑब्जेक्ट है, हम ह्यूमन कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो इसमें मेरा एस डी एफ हर चीज ऑब्जेक्ट है, जिसमें मैं कुछ से वैल्यू दे रहा हूं। मीन्स ऑब्जेक्ट हैज इट्स वैल्यू, और ये सम सॉर्ट ऑफ एक क्लास से एसोसिएटेड होती है, एंड एसोसिएटेड विद क्लास। मैं लाइक आपसे एग्जांपल मांगता हूं, एग्जांपल पूछ, लाइक आप स्कूल जाते हो गाइस, स्कूल जाते हो, अब मान लो गाइस स्कूल में एक एग्जांपल देता हूं, आप हिंदी टीचर की क्लास में गए, उधर क्लासरूम में गाइस, क्लासरूम में उधर आपको टीचर पढ़ा रहा है, टीचर इज टीचिंग, और उसमें गाइस कितने सारे वो स्टूडेंट्स होंगे, 50 स्टूडेंट्स होंगे, यस। और हर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है टीचर के लिए। डोंट गैस, इसे थोड़ा वो सीरियस मत, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक हर हर स्टूडेंट टीचर के लिए एक इक्वल ऑब्जेक्ट है, इक्वल, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है। लाइक ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जैसे ऑब्वियसली गैस टीचर की नजर में सभी एक समान होते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? एक कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कोई थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टूडेंट है गाइस जो उसे थोड़ा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझाना पड़ता है, बट है काफी वो जीनियस ना। अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग विशेषता होती है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई स्टडीज में अच्छा है ना? क्लियर गाइस? और हर स्टूडेंट की वैल्यू है टीचर की नजर। वो हिंदी टीचर क्या है गाइस, आपकी एक क्लास है, और उसके रिस्पेक्ट में जो हर स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना? और हर ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू है। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? है ना? और सिमिलरली इधर भी यही चीज शो हो रही है, मतलब ये जो एस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, बट इसकी जो क्लास क्या है, क्लास क्या है, इंटीजर, इंट। इसकी जो क्लास क्या है, फ्लोट। इसकी जो क्लास क्या है, एस टी आर। एस टी आर शॉर्ट फॉर्म में मतलब फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में आप लेटर ऑन एक पूरा लेक्चर, एक डेडिकेटेड लेक्चर में इस पर बनाऊंगा लेटर ऑन। क्लियर? स्ट्रिंग। क्लियर गैस? अब इधर से क्या समझ आया, आपके यहाँ जो मेजर चीज है क्लास है, क्लास है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। आप समझोगे गैस, जैसे आप ये सम सॉर्ट ऑफ जो इंटीजर है, ये डेसिमल वैल्यू है, लाइक जैसे हम फ्लोट बोल रहे हैं, ये आप स्टेटमेंट को हम स्ट्रिंग बोल रहे हैं, लाइक ये सारे जो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू स्टोर है उसका जो टाइप ही तो है डाटा टाइप, इन्हीं को तो हम डाटा टाइप बोल रहे हैं। क्लियर? ये सारे डाटा टाइप्स आप समझ सकते थे क्लासेस हैं, और इनसे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, है ना? और इस ऑब्जेक्ट की तीन विशेषताएं होती हैं। पहली चीज, इसकी टाइप क्या है, जो आप समझ चुके हो, है ना? और सेकंड चीज जो इसकी वैल्यू, वैल्यू कौन सी स्टोर कर रहा है, और थर्ड थिंग आइडेंटिटी। आई विल डिस्कस इट, डोंट वरी। क्लियर? जस्ट आइडेंटिटी, लाइक प्रिंट। बस अब आइडेंटिटी क्या होती है, जस्ट सेकंड गाइस, इट्स रिकनेक्टिंग। हर ऑब्जेक्ट की मैंने आपको बता दिया एक वैल्यू है, ये बस एक वैल्यू है, सॉरी, एक वैल्यू है, एक
उसकी जो क्लास, उसकी टाइप है ना। आइडेंटिटी क्या होती है गाइस? वो ऑब्जेक्ट जो है गाइस, उसकी जो वैल्यू है, उसकी रैम में कहीं तो स्टोर है। वो गाइस 4 बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है। लाइक मान लो आप, वो 4 बाइट्स, एक जो उसकी वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट है, वो मेमोरी इतनी ले रहा है 4 बाइट्स, है ना। और रैम आपकी मान लो 8 GB है ना। तो वो कहीं तो वो ऑब्जेक्ट स्टोर हो सकता है, इधर भी स्टोर हो सकता है, इधर भी स्टोर हो सकता है ना। जैसे कि आपके घर के पहुंचने में, मुझे आपका घर जाना है, तो मैं आपके घर घर जाने के लिए आपसे एड्रेस मांगूंगा। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है, जिसे हम उसकी आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी, हर एक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है, इट्स यूनिक मेमोरी एड्रेस, मतलब वो कहाँ पे स्टोर है ना। और अगर मुझे उसका एड्रेस जानना है तो मैं क्या करूंगा, आईडी फंक्शन की हेल्प से। लाइक मुझे पहले इंटीजर एस का ऑब्जेक्ट, एस का एड्रेस जानना है। इसका एड्रेस है समझो आप, तो ऑब्वियसली गाइस, अगर आपका एड्रेस होगा कुछ मान लो राजस्थान में, गांधीनगर में, कुछ आपका एड्रेस इस तरह से होगा, बट इसका कुछ एड्रेस मतलब कुछ रैंडम नंबर सा कुछ कुछ एड्रेस है लाइक। और इस एड्रेस की हेल्प से मैं उस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता हूँ। इट मीन्स इस एड्रेस की हेल्प से मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू भी पता लगा सकता हूँ। ये हम लेटर समझेंगे कैसे पता लगा। ये अगर मैंने इसकी, और हर का देखो यूनिक एड्रेस है, और है, और हर का देखो गाइस यूनिक एड्रेस है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर अगर मैंने मान लो एक वेरिएबल डिफाइन करा 3, एक वेरिएबल डिफाइन करा 3, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट करे, डब्ल्यू एंड आर, उनका टाइप क्या है, इंट, उनमें वैल्यू कौन सी स्टोर है, 3, बट उनकी आइडेंटिटी मतलब दोनों में वैल्यू सेम है, क्या उनका यूनिक एड्रेस भी सेम, क्या उनका एड्रेस भी सेम होगा, नो। ऑब्जेक्ट का यूनिक एड्रेस होगा, वैल्यू का नहीं। वैल्यू चाहे दोनों में सेम भी स्टोर हो सकती है, वो तो हम हमारे पर डिपेंड करता है। चाहे आप देख लो, आई डी डब्ल्यू, आई डी आर, दोनों का अलग अलग है। यस, ओ सॉरी, दिस इज द मेजर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग in this scenario I have created a two objects, और उनमें मैंने वैल्यू सेम स्टोर करी है, उनमें मैंने वैल्यू सेम स्टोर करी है, और आपके अकॉर्डिंग तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस अलग अलग होना चाहिए था, बट इसमें तो दोनों का एड्रेस सेम मिल रहा है। व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस इज गाइस व्हाट हैपनिंग, यू विल अंडरस्टैंड। पाइथन गाइस जो है ना, इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। You will understand this concept in aliasing that will I teach further. Aliasing, what is aliasing? I will teach further. Don't worry. डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है? पाइथन में आपको गाइस डाटा टाइप्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर कोई इधर से सी और सी प्लस प्लस सीख कर आ रहा होगा, है ना, सी और सी प्लस प्लस, है ना, तो वो जानता होगा लाइक सी में तो इनफैक्ट सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह में, उधर आपको वेरिएबल को एक्सप्लिसिटली उसका डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल किस डाटा टाइप का है, देन उसमें वैल्यू स्टोर होती है इस तरह से। और पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में मान लो मैंने कुछ वेरिएबल में वैल्यू कुछ 5, 5.14, कुछ मैंने लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया, वो ऑटोमेटिकली उसे आइडेंटिफाई कर लेगा ये वेरिएबल इस टाइप का है, डायनेमिकली टाइप्ड, है ना। बस अभी तक हमने we have discussed a lot of concepts. First of all, we have discussed the identifiers is the name that refers to the object. Clear guys? एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। आई थिंक अभी तक आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, है ना। इट इज अ लेवल दैट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी, मतलब
दैट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट। आपने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, ए बी, कुछ भी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। दैट स्टोर्ड इन अ मेमोरी, जो एक मेमोरी में स्टोर है, जिसका एक यूनिक एड्रेस है। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब टाइप्स जो हैं बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट्स नॉट टू द नेम्स। व्हाट इज दिस मीनिंग? टेल मी, टेल मी, व्हाट इज दिस मीनिंग? मान लो ए इक्वल टू मैंने 5 करा, तो इसकी टाइप क्या हुई? कोई बताएगा? इंट, जो कि क्लास बी है, हम क्लास भी कर सकते हैं मेजर। और ए मेरा क्या है गाइस? और ए, और इसका टाइप क्या है? क्लास इंट, है ना? और जो इसकी टाइप है ना, बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट नॉट टू द नेम्स। ये समझो, ए मेरा क्या है? कुछ नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट्स नेम। ऑब्जेक्ट्स नेम, टाइप क्या है? जो ऑब्जेक्ट का नाम है, कि ये नाम है। आइडेंटिफायर दैट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, नो टाइप डिक्लेयर्ड फॉर द नेम, है ना? ऑब्जेक्ट का नाम है, जो कि एक सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इंट को रेफर कर रहा है ना? है ना? टाइप्स बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट्स मींस, जो आपका जो ये जो टाइप है गाइस, वो डायरेक्टली इसको बिलोंग कर रहा है ना? मीनवाइल ए जो इसका जो नाम है, नाम को नहीं बिलोंग कर रहा है, नाम कुछ भी हो सकता है गाइस। इसीलिए पाइथन डायनेमिकली टाइप मैंने अभी समझाया, नाम में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी, आई लाइक दिस, लाइक आप कुछ लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, है ना? लाइक आप मान लो कुछ डेसिमल नंबर भी ऐड कर सकते हो, 5.14, 3.14 एक्सेट्रा, ना? इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, है ना? और ये सारे नंबर इसके टाइप से लिंक्ड है, मतलब ये ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है ये इसका मतलब अगर मैं इसमें 5.14 पुट करूंगा, तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा? इंट, ओ सॉरी फ्लोट। क्लियर गाइस? नाउ वी विल have gone to the variables. Guys, exactly, identifiers are the general names. आइडेंटिफायर्स में अब लेटर ऑन में जब समझाऊंगा, लेटर ऑन क्लासेस में फंक्शंस समझाऊंगा, क्लासेस समझाऊंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जैक्टली आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ द आइडेंटिफायर। इट इज एन आइडेंटिफायर नेम दैट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंट फ्लोट को जो रेफर कर रहा है, दैट स्टोर्स द वैल्यू इन द मेमोरी। ए वेरिएबल ऑलवेज स्टोर्स द पॉइंट्स टू द सम डाटा, कुछ डाटा उसमें होगा। और इन दोनों में डिफरेंस क्या गया है? ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये स्पेशल केस है, लाइक नेमिंग मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स द वैल्यू। क्लियर? अब रूल्स क्या है? मतलब पाइथन में किसी चीज को नाम देना है तो उसके लिए रूल्स क्या है? मतलब पहली बात तो गैस, मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वो आपका लेटर और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। मैं अभी दिखाऊंगा। मान लो अगर मैंने कुछ ए बी सी डी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये आपका पहला अक्षर जो है लेटर या अंडरस्कोर ही होना चाहिए, है ना? और मैं अभी ये चीज समझाऊंगा। और कैन कंटेन द लेटर्स, मतलब लेटर्स हो सकते हैं, इसमें डिजिट्स हो सकते हैं, और अंडरस्कोर हो सकते हैं। अगर मैं मान लो कुछ वेरिएबल डिफाइन करता हूं, कुछ वेरिएबल लेट से डिफाइन करता हूं, मैथ्स स्कोर, एक जे वाला वेरिएबल डिफाइन करता हूं, एक जे वाला मैथ्स स्कोर, एक मैथ्स अंडरस्कोर, एक मैथ्स हाइपन स्कोर। ये वाला इनवैलिड होगा, ये वैलिड होगा, क्योंकि वेरिएबल में सिर्फ लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और अंडरस्कोर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। केस सेंसिटिव मतलब, जो मैंने अब मान लो दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करिए, स्मॉल है कैपिटल है, ये दोनों वेरिएबल्स पाइथन अलग अलग ट्रीट करेगा। द केस सेंसिटिव है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस है। और पाइथन कीवर्ड मैं ये लेटर और मैं अभी समझाता हूँ क्या होता है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस अलाउड, choose meaningful names, best practices, like let's say rules for variables,
रूल्स फॉर वेरिएबल्स ए इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी सी डी इक्वल टू 4 5 6, क्लियर। और मैंने कुछ इन फर्स्ट नंबर ए 3 5 6 इक्वल टू 3, देखो ये सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, है ना, क्लियर, एरर है कर एस फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए क्या होना चाहिए, मैंने अभी बताया लेटर्स और अंडरस्कोर, एस फर्स्ट लेटर इज डिजिट नंबर, आपको मैं फिर से दिखा, लेट्स, ये वेरिएबल डिफाइन है, क्लियर। और केन कंटेन्स लेटर्स, अगर मान लो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 4 5, और अगर मैं इसे स्मॉल ए से सॉरी, वो स्मॉल ए मैंने ऊपर भी एक डिफाइन करा था ना, इसलिए एस टी एफ, अगर मैं इसे स्मॉल से करूं, इट्स शोइंग द नेम एस टी एफ इज नॉट डिफाइंड, अगर मैं एस कुछ भी करूं एरर आएगा, क्योंकि ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, बस ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा कि इनसेंसिटिव है, क्लियर गैस। नो स्पेशल करेक्टर्स, लाइक गैस पाइथन में ना कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि आप धीरे धीरे पढ़ोगे, है ना, कुछ इस तरह के स्पेशल करेक्टर्स होते हैं लाइक फॉल्स, एल्स, इंपोर्ट, पास, है ना, ट्रू, ये क्लास, फाइनली, ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो कि ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, मीन्स पाइथन का ये इसका इंटरनल मीनिंग होता है ये कि आप समझोगे बाद में, कुछ मतलब इन दोनों इन सभी वेरिएबल्स का कुछ इनका कुछ पाइथन में इंटरनल मीनिंग होता है ना, इसीलिए आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने किसी और फंक्शन के लिए, लाइक आपने लेट से कुछ आपने डिक्लेयर कर दिया कुछ फॉल्स इक्वल टू 0 बस 7, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। मान लो आपने कुछ इफ इक्वल टू 2 कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजर्व करेक्टर है, पाइथन में इसका खुद का एक मीनिंग है, जिसका खुद का मीनिंग है गैस, है ना, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पाइथन के रिजर्व वर्ड्स हैं, आप इन्हें छोड़कर बाकी इन रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी वेरिएबल्स बना सकते हो, चूज मीनिंगफुल नेम्स ऑलवेज, वी विल सी इट, गैस क्लियर गैस, गैस यू कैन सी also while sometimes हमें लाइक कोड करते करते लाइक मतलब हम कुछ पाइथन का रिजर्व कीवर्ड मान लो कुछ इस्तेमाल हो गया और एरर आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा है क्यों, हमें पता नहीं है कौन सा पाइथन का, देन हम इससे हम चेक कर सकते हैं, हम इसे पूरी की पूरी लिस्ट बना सकते हैं, लाइक इंपोर्ट कीवर्ड, ये कीवर्ड एक आपका कह सकते हैं फंक्शन है ना, पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है जिसे आप इंपोर्ट से मतलब इसे इस फाइल में आप जिस पे आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो उसमें बुला रहे हो, क्लियर। और जितने भी पाइथन के रिजल्ट कीवर्ड से आप इसकी हेल्प से बुला सकते हो, जस्ट सेकंड व्हाट्सएप नहीं, ओ सॉरी, यस कीवर्ड इज द, यस मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आई थिंक समझ आ गया होगा। मान लो मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी थी हिंदी, आप जब पाइथन में एक चीज होती है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, इट्स ए वेरी चीज इंटरेस्टिंग, आप ये बाद में समझोगे, अभी मैं थोड़ा सा इसकी इंट्यूटिव एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी लाइक हिंदी टीचर की क्लास की, है ना, ये आपकी क्या है क्लास है ना, और इसमें गैस 50 स्टूडेंट्स है ना, 50 स्टूडेंट्स हैं, मतलब और मीन्स 50 स्टूडेंट्स में कैसे 50 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर ऑब्जेक्ट की एक अलग टाइप है, लाइक वो मेल है फीमेल है कुछ भी टाइप है ना,
और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, एक यूनिक एड्रेस होगा ऑब्वियसली, और हर ऑब्जेक्ट का एक अपनी यूनिक वैल्यू होगी उस क्लास में, है ना। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को इसमें किसी स्टूडेंट को रेफर करना है इस क्लास में, तो कैसे रेफर करूंगा? उस क्लास का नाम क्या होगा? हिंदी क्लास, हिंदी टीचर की जो क्लास है, और देन उस स्टूडेंट का नाम मीन्स उस ऑब्जेक्ट का नाम, लाइक राहुल, देन उसको मैं रेफर करूंगा इस तरह से, है ना। और पाइथन में सिमिलरली क्या होता है गाइस, किसी भी क्लास के जो अंदर किसी ऑब्जेक्ट, आप समझ सकते हो, किसी फंक्शन को कॉल करना है, किसी फंक्शनैलिटी को कॉल करना है, देन आप उसे, लाइक मेरी क्लास है, इनबिल्ट क्लास है कीवर्ड, उसमें मेरे अलग अलग फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, के डब्ल्यू लिस्ट, इसकी हेल्प से मैं डॉट ऑपरेटर, हम इसे डॉट ऑपरेटर बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम पाइथन में कर सकते हैं। क्लियर गाइस? देखो ये सारी लिस्ट आ गई, आप मीन्स ये वाले सारे वेरिएबल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्रिएट वेरिएबल्स टू स्टोर योर नेम, एज एंड जीपीए। हाउ विल यू योर नेम, लाइक आप पहले अपना नाम स्टोर करोगे, लाइक स्ट्रिंग्स में दिशांत गुप्ता, देन एज अपने अंडर इक्वल टू साइन के साथ करोगे, एज मेरी मान लो कुछ 21 है, और देन अपनी परसेंटेज स्टोर करोगे, लाइक मान लो मेरी 10 में से 8.9 है, लेट्स से आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल। और देन आप प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट नेम, सॉरी प्रिंट, मैं इसे एक बार इधर रीड कर देता हूँ, नेम मान लो मेरा, एज कितनी है, जीपीए मेरी मान लो, ऐसा मैं प्रिंट कैसे करूंगा? अब पाइथन में गैस ध्यान रखना, अब देखो प्रिंट जब मैंने इसका फंक्शन इस्तेमाल करा तो इसमें सम छोटों में अलग अलग वैल्यूज हैं। इसमें क्या वैल्यू ऑब्जेक्ट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, नेम, एच जीपीडी आपके ऑब्जेक्ट के नेम है, आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, मीन्स इसको प्रिंट करना है इसकी वैल्यू। और देन सेपरेटर मीन्स ऑब्जेक्ट, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी इसमें कर सकते हो। द स्ट्रिंग्स इंसर्टेड बिटवीन द वैल्यूज डिफॉल्ट स्पेस, है ना। क्लियर? डिफॉल्ट स्पेस, और प्रिंट फाइल, और आप इसमें फाइल में इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक लेट्स से किसी फाइल, वो हम लेटर ऑन समझेंगे, फाइल को पाइथन में कैसे इंपोर्ट करवाना है, फाइल का सारा कंटेंट कैसे प्रिंट करवाना है वो समझेंगे लेटर ऑन। और बेसिकली इसमें सम छोटे वैल्यूज, चलो करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, मैंने पहले ऑब्जेक्ट की मैंने वैल्यू लिखी है, माई नेम इज, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग, और देन आई हैव कोमा, and then I will write my another object, then I will write my another object name as above declared. Clear? Yes. होते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं। पहला दे वैल्यूज है, मतलब ऑब्जेक्ट्स, मतलब माय नेम इज द ऑब्जेक्ट, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कर सकता हूं, और मैं जब सेकंड इनपुट दूंगा इस तरह से दे सकता हूं। मान लो मुझे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन मुझे कुछ बिठानी है, अभी मान लो मैं लेट्स से ये चीज, माय नेम इज दिशांत, अगर मान लो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेपरेशन क्या रखी, वो स्पेस, अगर मैं स्पेस ना दूं, देखो स्पेस कम हो गई, अगर मान लो मैं सेपरेशन दोनों के बीच में ये कुछ रखूं, देखो सेपरेशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये चीज आ गई। क्लियर गाइस?
और अगर लेट्स से मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को माई एज इज माई नेम इज नेम देन अनदर ऑब्जेक्ट एंड माई एज इज एज। जो मैंने अब डिक्लेयर, इसमें मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स डाले हैं बताओ? 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स आई। माई नेम इज दिशान एंड माई एज 21। क्लियर गैस? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट्स हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पे अगेन मैं कह रहा हूँ पूछ सकता है। दिस इज जीपीए। यस क्लियर। अब आपका जो नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट कार्ड जनरेटर, टेक द स्टूडेंट डिटेल्स एज वेरिएबल, है ना? प्रिंट टाइम इन फॉर्मलाइज्ड मैनर। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिस्कस करूंगा कैसे। ये आपका होमवर्क है। और ये चीज मैंने अगेन से समझा दी है। पाइथन इज अ डायनेमिकली, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स भी समझा दिए हैं। और आई थिंक मैंने पाइथन ये सम छोटे एग्जांपल थी। और देन वी विल मूव टू द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है गैस। ये जनरली गैस इंटरव्यूज में पूछा जाता है। What is your aliasing? What is your aliasing? हाँ. When two or more identifiers point to the same object. अब ध्यान से समझना, ध्यान से। मैं अभी आइडेंटिफायर्स की जगह ना गैस वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं बाद में अलाइसिंग में जब हम आइडेंटिफायर्स मोर इन डेप्थ पढ़ेंगे ना, तब मैं वेरिएबल्स, जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? मान लो गैस मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्मॉल ए, एक मैंने वेरिएबल करा स्मॉल बी, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे सी, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करी 5, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर करी 5.14, इसमें मैंने कुछ मैंने अपना नाम पुट कर दिया दिशा। चलिए, ऐसे कुछ मैंने वैल्यूज कर दी 3 वेरिएबल से। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ इसमें तो ऑब्जेक्ट, सॉरी, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे ए बी सी, और तीनों को ही मैंने सेम ऑब्जेक्ट से पॉइंट कर दिया, मतलब सेम ऑब्जेक्ट मतलब सेम टाइप। 5 5 5, then what will happen? Any change made through one name, अगर मैं ए में कुछ चेंज करता हूं देन वो बी एंड सी में भी रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि प्रीवियस केस में था। जैसे कि जब मैंने प्रीवियस केस में जब किया था, मान लो हम अलाइसिंग को समझेंगे। जब मान लो मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन करा ए इक्वल टू 5 4, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 2, ये मैंने 3 वेरिएबल्स, सॉरी 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 गैस, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या गैस? पहले मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। गैस हर एक ऑब्जेक्ट की 3 आइडेंटिटीज होंगी। ईच ऑब्जेक्ट की 3 वैल्यूज, पहली वैल्यू और दूसरी आईडी, तीसरी तीसरी क्या? उस ऑब्जेक्ट का नाम? नहीं, कुछ और बताओ ना, देख लेते हैं।
टाइप वैल्यू आइडेंटिटी। मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब उसकी वैल्यू भी तीनों वेरिएबल्स में सेम होगी। ये कुछ बच्चों में डाउट आता है। और अगर लेट्स से मैंने ए को मैंने चेंज कर दिया 4.7 4.5, change a to 4.5, then I will print b, then what happen? Oh, nice. What happened? Pointer same object, sorry. What this happen? Two remote controlling the same TV. Change volume with one remote. And what will happen? When two or more identifiers point to the same object, any change made through the one name affects the object. So all LICs see it. इसका मीनिंग तो यही हुआ आपके अकॉर्डिंग। फिर मैंने बी को प्रिंट करा, क्या हुआ बताओ। मतलब when two or more variables point to the same object, तीनों सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहे हैं। एनी चेंज मेड थ्रू द वन नेम affects the object, so all LICs see it. इसका मीनिंग तो कैसे सही हुआ, but here it's not visible. Why? Where I am doing wrong? Maybe in some students this will be doubt guys। आज का लेक्चर हम थोड़ा इसी पे एंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए, ये इसको समझ कर आना है। इस लेक्चर को एक बार अच्छे से रिव्यू मारना है, मैंने क्या समझाया था और क्या डाउट्स है। अब जैसे कि लास्ट में भी कुछ स्टूडेंट्स में माइंड में डाउट आया होगा, वेरिएबल्स पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, इससे ये चीज समझ सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट कुछ तो कह रही है बट समझ नहीं पा रहे हैं। समझना है इसको, चलिए मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। आज के लेक्चर में हम यही तक रखते हैं गैस। नेक्स्ट लेक्चर में हम म्यूटेबल इम्यूटेबिलिटी समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यस, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक लेंथी हो गया है स्टूडेंट्स के लिए भी यस। और नेक्स्ट लेक्चर का जो आपका एजेंडा रहेगा ना, ये दो रिमेनिंग टॉपिक्स जो आपका, एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो करना है, एक जो अलाइसिंग वाला टॉपिक करना है, और म्यूटेबल इम्यूटेबल। और देन वी विल मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस guys, एंड देन आवर मेन प्रोजेक्ट। जैसा हम एक मेजर प्रोजेक्ट अब लेक्चर के बाद करने वाले हैं, फोर्थ लेक्चर के बाद क्या होगा, कैलकुलेटर बनाना है। आपने बचपन में इस तरह का कैलकुलेटर देखा होगा, सभी ने देखा होगा, अभी भी मोबाइल ऐप्स पे देखते हो। मतलब हम फिजिकली इसी इस कैलकुलेटर को बनाएंगे, इस कैलकुलेटर को कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हो ना। काइंडली यू कैन फॉर एनी क्वेरीज यू कैन डाउनलोड गाइस, you can contact us or carry us at telegram channel, link will be available at description। you can download the apps install empower from play store, and वेबसाइट के लिए इस QR को स्कैन कर सकते हो गैस। क्लियर गैस? तो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे गैस।